Students, today we are going to start second chapter from snapshot of class 11th, the address. This story means the chapter, the address, is a moving short story of Margot Minko. During World War II, Germany invades Holland. A woman with her daughter has to move from her home. The mother dies. Long after the war, the daughter comes back to her town. She meets the woman with whom her mother had left all her belongings. The woman even refuses to recognize her, nor does she show any intention of returning the things she has in her possession. She gives up the idea of getting them back again. She decides to leave all of them behind. She resolved to forget the address where those belongings lie unceremoniously in unpleasant surroundings. You will find this story in the chapter. Let's read the chapter. Do you still know me? I asked. I means narrator asked. Do you know me? क्या मुझे जानती हैं? The woman looked at me searchingly. उस लेडी ने मुझे searchingly means questioningly देखा. She had opened the door a chink. उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला. I came closer and stood on the step. Narrator थोड़ा नज़दीक गई और स्टेप पर खड़ी हो गई. Here chink means a narrow opening means like a peep hole. एक हल्की सी दरार हम कह सकते हैं. तो उस लेडी ने जो नरेटर वहाँ पे गई हुई थी मीन्स these lines describe about that the narrator visited any house and she asked when someone opened the door that was a lady and she asked him that she know him. Then the narrator also came closer and stood there. Now see what happens. No, I don't know you. The lady told her that she didn't know her. I am Mrs. S's daughter. Narrator कहती है भाई अपना इंट्रोडक्शन देती है. I am S's daughter. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it. उसने दरवाज़ा अपना पकड़े रखा और ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजे को आगे खुलने से रोकना चाहती हो. And that was years ago. Her face gave absolutely no sign of recognition. उस लेडी के फेस से कोई भी रिकॉग्निशन मीन्स आइडेंटिफिकेशन का कुछ हल्का से भी एक्सप्रेशन उस लेडी पे नज़र नहीं आया कि भी वो उस नरेटर को जानती हो. सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस बट वो साइलेंटली नरेटर को देखती रही. स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग इंटेंटली, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. नरेटर कहती है कि शायद वो वहाँ पे गलती कर रही थी, वो राइट एड्रेस पे नहीं थी. आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर. और नरेटर सोचती है कि भी शायद वो लेडी नहीं है जिससे वो मिलना चाह रही हो. आई हैड सीन हर ओनली वंस. द नरेटर हैड सीन दैट लेडी ओनली वंस इन हर लाइफ, फ्लीटिंगली, हल्का सा. एंड दैट वॉज ईयर्स एगो. और ये काफ़ी लंबे टाइम की बात है. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बेल. नरेटर को लगा शायद ये रोंग बेल है जहाँ पर उसने उसको नरेटर ने उस लेडी को एड्रेस किया. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. लेडी ने दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ दिया और साइड में आके खड़ी हुई. शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन knitted कार्डिगन. Narrator looked at her and found that the particular lady means who opened the door was wearing her mother green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. जो वुडन के बटन्स थे वो वॉश करने से पेल हो गए थे, पीले पड़ गए थे. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उसने देखा कि मैं कार्डिगन की ओर देख रही हूँ, इसलिए उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. लेकिन नरेटर को पता था कि भी वो राइट एड्रेस पे थी. वेल यू न्यू माई मदर. क्या आपको मेरी मदर को आप जानते हैं? हैव यू कम बैक सेड द वीमेन. जब लेडी ने देखा कि नरेटर ने उसको पहचान लिया तब उसने कहा क्या तुम वापस आ गए हो?
आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा आप कभी वापस नहीं आएंगे। एंड द नरेटर सेज दैट ओनली मी, केवल नरेटर ही वापस आई है। मीन्स हियर वी फाउंड दैट द नरेटर went to a lady house, and when the lady opened the door, she looked at the newcomer searchingly. She was Mrs. Darling. The narrator introduced herself, but the woman's face showed absolutely no sign of recognition. She was still staring at her in silence. The girl had once seen the woman years ago, means the narrator had seen her once ago, and she realized that perhaps she had rung the wrong bell. But soon her doubt was clear when the narrator saw that the woman was wearing her mother's green knitted cardigan. It means she was at the right address. When the lady observed that the narrator recognized her, she stood there surprisingly. The narrator then told her that she was the daughter of Mrs. S. The woman asked them that have they come back. Now it was clear that she was not pleased to see the girl again. The girl replied that she was the only one who survived and came back. नेक्स्ट, अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। तभी एक दरवाज़ा खुला और उसके पीछे नरेटर ने देखा कि एक आगे की ओर रास्ता जा रहा था, लंबा सा रास्ता था। अ मस्टी स्मेल अमस्ड, मस्टी हेयर मीन्स स्मेलिंग डैम्प एंड अनप्लीजेंट। जो घर में सीलन लग जाती है तो वो आवाज़ आती है, वैसा ही एमस्ड मीन्स रोज़। एकदम से वहाँ से डैम्पिंग स्मेलिंग नज़र आई। I regret I can't do anything for you. Regret means feel sorry, but the lady felt sorry by saying that she didn't know her. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment, but the narrator says that she had come there specially by the train and she wanted to talk that lady. It is not convenient for me, but convenient means comfortably easy. But lady ने कहा कि भाई ये उसके लिए easy नहीं है अब उससे मिलना। I can't see you another time. Please, you can visit another time. She nodded. Means shook her head. उसने अपना सिर हिलाया। I was on the step. अभी भी वो वहीं पे दरवाजे पे खड़ी थी। The curtain in front of the bay window moved. तभी जो bay window means एक large window with glasses opening out from the outside wall. जो बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की है सामने वाली, उससे उसने देखा कि भी वहाँ से कर्टेन हिला। Someone stared at me. वहाँ से कोई मुझे लगा कि भी घूर रहा है। And would then have asked what I wanted. और शायद उस पर्सन ने भी पूछा होगा कि भी मैं क्या चाहती हूँ इसके बारे में। Oh nothing, the woman would have said. लेडी ने कहा होगा कुछ नहीं है, वो ऐसा कोई बात नहीं है। I looked at the name plate again. नरेटर दोबारा से फिर नेम प्लेट पे देखती है। Darling it said in black letters on white enamel. Enamel होता है टाइप ऑफ पेंट, बड़े बड़े पेंट से लेटर्स में एड्रेस लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम्प, जैम्प होता है एक वर्टिकल पोस्ट एट द साइड ऑफ ए डोर, ए बिट है थोड़ा सा ऊंचा। एंड देर वॉज रिटर्न नंबर 46 और वहाँ पे नंबर लिखा हुआ था नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे ही नरेटर स्टेशन की तरफ गई, आई थॉट अबाउट माई मदर। तभी नरेटर अपनी मदर को याद करती है। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर एगो, जिन्होंने ये एड्रेस बहुत पहले दिया था। एंड इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, शायद ये फर्स्ट हाफ ऑफ द वार की बात है। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, जब मैं वहाँ पे कुछ दिनों के लिए घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। तभी नरेटर के माइंड में आया शायद रूम में कुछ एक चेंज है, कुछ एक मिसिंग है। आई वॉज home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. Narrator says that one day when she was at home and suddenly she noticed that there was something which was missed in the room, means something has been missed which was used to be earlier in the room. I missed various things. उसने बहुत सारी चीज़ों को नोट किया कि भी वो उस रूम में नहीं है। My mother was surprised
आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। नरेटर की मदर सरप्राइज थी कि भी नरेटर ने इन चीज़ों को इतना क्विकली नोटिस किया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डोलिंग। तब उसने मिसिज डोलिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, बट क्लैरिटी यही थी वो मेरी मदर की ओल्ड एक्वेंटेंस मीन्स रिलेटिव, नॉन पर्सन, जान पहचान वाली थी, पुरानी जान पहचान वाली। whom she had not seen for years, जिसे मेरी मदर ने भी काफ़ी सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up, वो अचानक से आ जाती है। and renewed their contact, और अपने renewed means started again, और दोबारा से कॉन्टैक्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। since then she come regularly, और तब से वो लेडी रेगुलरली वहाँ पे विजिट करने लगी। means the narrator says then her mother had given the address before a year ago. At that time the Holland was war stricken and it had been the first half of the war. She remembered how she came home for a few days and she noticed that various things in the house were missing. Her mother then told her about Mrs. Dorling. She had never heard of her before this. It was clear that Mrs. Dorling must have been an old acquaintance of her mother. Now Mrs. Dorling started coming regularly at their house. Every time she leaves here, she takes something home with her. जब भी नरेटर के घर वो मिसिस डोलिंग आती, हर बार कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाती। सेड माई मदर, सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। एक बार में सिल्वर टेबल पर जो सिल्वर की क्रोकरी यूज़ करते थे वो एक बार में ही लेकर चली गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, जो एंटीक प्लेट्स के बारे में बताती जो वहाँ पे यूज़ टू हुआ करती। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वॉसीज, और उन बड़ी बड़ी चीज़ों को ले जाने में नरेटर ये कहता है कि भी नरेटर की मदर बताती है कि भी वो सारी चीज़ें एक बार में ही ले गई। मीन्स कितना ज़्यादा बर्डन वो अपने साथ में ले जाती थी जब भी वो उनके घर विजिट करती। आई एम वरीड सी गोट ए क्रीक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी, और मैं हैरान थी जब वो उस सामान को, उस क्रोकरी को अपने साथ ले जाती है तो शायद उनकी कमर में, ठीक है, कुछ ना कुछ मसल्स में ज़रूर स्टिफनेस उसने फील किया होगा। क्रीक मीन्स एयर सडन स्टिफनेस इन मसल्स, मतलब जैसे आंतें खींच जाती हैं या कमर में मोच आ जाना, इस तरीके की चीज़ नरेटर को लगा कि उस लेडी ने फेस की होंगी। माई मदर शूक हर हैड पीटिंगली मीन्स इन ए पैथेटिक मैनर। उसकी मदर ने भी अपनी एग्री किया कि भी हाँ इस तरीके का उस लेडी को काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, नरेटिव कहती मैंने कभी भी ये पूछने की कोशिश नहीं की उसकी मदर ने। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उन्होंने खुद ही मुझे सजेस्ट किया था कि भी ये सारा सामान मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ। सी इवन इंसिस्टेड, सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग, सी सेज। इंसिस्टेड में स्ट्रेस, काफ़ी दबाव डाला, यहाँ तक कि उन्होंने ही इस बात पे दबाव डाला कि भी वो उसकी सारी चीज़ें बचाना चाहती है। अगर युद्ध हो गया तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ेगा, तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उस लेडी ने कहा अगर आप यहाँ से जाओगे तो ये सारा सामान आप मेरे घर रख सकते हो, मैं अपने पास ले जाऊँगी, तो युद्ध के बाद क्योंकि वो मेरे पास सारी चीज़ सेफ रहेंगी, इसीलिए आप वहाँ से वो सामान आराम से ले सकते हैं। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी कुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। नरेटर अपनी मदर से पूछते क्या आप इस बात पे एग्री हो गए कि वो सारी चीज़ अपने घर में रख सकती हैं। एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, जैसे कि ये बात बिल्कुल ज़रूरी हो कि वो लेडी घर पे लेके गई है तो सेफ रहेगा। उसकी मदर क्राइड मीन्स चिल्लाती है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, उस लेडी के बारे में इस तरीके से बात करना इंसल्टिंग है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी हैज़ रनिंग, और उस रिस्क के बारे में सोचिए जो वो हमारे लिए उठा रही हैं। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, जब भी वो यहाँ से जाती है हमेशा उसका जो बैग और सूटकेस है वो भरा हुआ होता है। इट मीन्स द नरेटर डिस्क्राइब हेयर व्हेन मिसिज डॉर्लिंग केम देयर हाउसेज एवरी टाइम शी विजिटेड शी टुक समथिंग विद हर।
One day she took all the silverwares. Then she took away the antique plates hung on the wall. Mrs. S told her daughter that Mrs. Dorling wanted to save all her articles because it was war time. If they had to leave the place, they could lose everything. The daughter wanted to know if there was a written agreement that Mrs. Dorling would return all the articles safely. It means narrator couldn't trust anyone so blindly. But her mother got irritated and she replied that it is not necessary that we wanted a written agreement for that. Mrs. S was thankful to Mrs. Dorling for what she was doing for her, and all these things happened a years ago. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मदर को लगा कि भाई नरेटर उसकी बात से बिल्कुल भी पूरी तरीके से कन्विंस्ड मीन्स सेटिस्फाइड नहीं है इस एक्सप्लेनेशन से. शी टुक एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. रिप्रूविंगली मीन्स रिब्यूकिंग चाइडिंगली, और मुझे डांटते हुए उन्होंने देखा और उसके बाद हमने इस बारे में कभी भी बात नहीं की. मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन. अब नरेटर स्टेशन पे पहुंच गई थी. विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. वो जो उसके रास्ते में फैमिलियर थिंग्स रास्ते में आ रही थी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर. और युद्ध के बाद, वॉर ख़त्म होने के बाद वो पहली बार उन फैमिलियर थिंग्स के पास से जा रही थी. बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी. माना कि ये चीज़ों को देखना उसके लिए बहुत एक अच्छी फीलिंग वाला मोमेंट था, बट इन चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ना नहीं चाहती थी. आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम. क्योंकि वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी कि वो उन गलियों में, उन स्ट्रीट्स में दोबारा जाए जिन गलियों में और जिन घरों में वो कभी रहा करती थी, जो उसकी पुरानी मेमोरीज से भरे हुए थे और एक अच्छा टाइम उसने वहाँ पे स्पेंड किया था. इन द ट्रेन बैक आई सा मिसिस डोलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. जब वो ट्रेन में वापस जा रही होती है तब उसने याद आता है कि मिसिस डोर्लिंग को जब उसने पहली बार देखा था युद्ध से पहले. इट वॉज़ द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. ये सुबह की बात है, उस दिन के बाद जब उन्होंने इस बारे में बात की थी. तो वन डे शी केम एंड इन द अर्ली मॉर्निंग एंड नरेटर हैड सीन हर वंस. आई हैड गोट अप लेट. उस टाइम उस डे नरेटर लेट उठी एंड कमिंग डाउन स्टेज. जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. मैंने देखा मेरी मदर बाहर गई हुई है किसी को सी ऑफ करनी. अ वूमन विद ए ब्रॉड बैग. एक लेडी जिसकी बैग ब्रॉड है. देर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर सी बिकॉन टू मी. उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी बेटी है, आप मिल लीजिए. एंड बिकॉन क्या होता है? गिविंग ए सिग्नल टू कॉल. और उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास. द वुमन नोडिड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. लेडी ने अपना सिर हिलाया और उसने सूटकेस को, जो उसने कोट, मतलब इतना ज़्यादा भारी सूटकेस था कि भी उसको उसने उठाया. सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट. फर्स्ट टाइम उसने देखा कि उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ है और एक शेपलेस हैट. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. नरेटर अपनी मदर से पूछती क्या वो बहुत ज़्यादा दूर रहती है, क्योंकि मैंने देखा था उसको कितनी दिक्कत हो रही थी जब उसने घर से एक हैवी सूटकेस को उठाया और वो घर से बाहर निकली. इट वॉज़ नॉट ईजी टू कैरी ऑल दीज थिंग्स. इसीलिए वो अपनी मदर से कहती है वो कितना दूर रहती है. इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46. रिमेंबर दैट. फर्स्ट टाइम उसकी मदर ने उसको ये एड्रेस बताया था, मार्कोनी स्ट्रीट एंड नंबर 46. इस बात को आप याद रखना. आई हैड रिमेंबर इट बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर. नरेटर ने कहा कि भाई मैंने
वो इस बात को ध्यान रखा और काफ़ी लंबे टाइम तक इसके बारे में बात की। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नो इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर स्टफ। वो कहने लगी कि अभी मैं पहले से ना जो स्टोर स्टफ मीन्स द थिंग्स विच वर kept by Mrs. Darling at her house, she was not interested to see। वो चीज़ें जो मिसेस डोलिंग ने अपने घर पे रखी हुई थी उन चीज़ों को देखने में नरेटर का कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से उसको काफ़ी मतलब अपने आप से काफ़ी डिफ़िकल्टी फील कर रही थी उन चीज़ों को सामना करने में। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, इस बात से उसको डर लग रहा था कि भी जब वो उन चीज़ों को फैमिलियर थिंग्स को देखेगी तो उसकी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं वो वापस आ जाएंगी, इससे उसको काफ़ी हर्ट होगा उसकी फीलिंग्स को, इसीलिए वो उन चीज़ों को देखना भी नहीं चाह रही थी। विच हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ से कनेक्टिविटी रखता था जो अभी जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again। जो चीज़ें एक जगह छिपा के रखी हुई है कपबोर्ड्स में, बॉक्सेस में, और शायद वो चीज़ें भी वेट कर रही है कब उनका रियल ओनर आए और वो अपने राइट प्लेस पे वापस जाए। इट मीन्स ये नरेटर का मानना है कि भी वो चीज़ें भी वेट कर रही होगी कब उनका रियल ओनर आए और वो उस अपने साथ लेके जाए। तो इस तरीके का वो अपने माइंड में बात सोचती है। विच हैड एंडोर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि उन्हें भी उन नरेटर से अलग रहना पड़ रहा था क्योंकि वो तो थिंग्स थी और वो अपने आप कोई कनेक्टिविटी नहीं रख सकता था। इसीलिए नरेटर ने ये कहा कि भी शायद वो चीज़ों भी काफ़ी डिफ़िकल्टी फील कर रही थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम more normal again, but after the war situation was under control and the things were becoming normal। bread was getting to be a lighter color। bread means जो situations थी अब नॉर्मल हो गई थी तो सारी चीज़ें अब आसान होना स्टार्ट हो गई थी। देर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन। अब आप एक ऐसे बेड में, अब आप एक ऐसे घर में रह सकते थे जहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी। अ रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंस एट इज डे, क्योंकि आप जी एक ही रूम में आपको बंद रहना पड़ता था तो उसी चार दीवारी को सारा टाइम घूरते रहते थे। बट आफ्टर द वॉर जो है सिचुएशंस चेंज हो गई हैं और आप इजीली अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। एट वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस। नरेटर सेज दैट वन डे सी suddenly remembered that she must go and see all the things which were related to her mother। नरेटर को अचानक से एक दिन याद आया, क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि भी उसे सभी चीज़ों को एक बार जो उस एड्रेस पे गिवन है मार्कोनी 46 वहाँ पे जाना चाहिए और उन चीज़ों को देखना चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन्हें देखना चाहती थी। टच एंड रिमेंबर। आफ्टर माई विजिट इन वेन टू मिसिज डोलिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड time। Now a girl of about 15 opened the door to me and I asked her if her mother was at home। मिसिस डोलिंग के घर फर्स्ट टाइम जाने के बाद जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मिसिस डोलिंग उससे नहीं मिली, तब नरेटर ने डिसाइड किया कि उसे सेकंड टाइम जाना चाहिए और अब की बार एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल ने दरवाज़ा खोला। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we will see what happened when she visited Mrs. Darling's house at second time। I hope you will understand the first part of the chapter।